NC صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ ہند پاک بات چیت کے بغیر جموں کشمیر میں امن کی بحالی ناممکن ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج پلوامہ میں میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ بات چیت ہی امن کا واحد راستہ ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کے ساتھ جموں کشمیر پر آل پارٹی میٹنگ کے بعد آج تک مرکزی حکومت کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان کے ساتھ بات چیت نہیں کی جائے گی تب تک یہاں پہ کبھی امن نہیں آئے گا۔ یہ آسمان سے کیوں نہ چھلانگے مارے۔ جب یہ چین سے بات کر سکتے ہیں تو پاکستان سے بات کرنے میں ان کو کیا مشکل لگ رہی ہے؟ آخر بات چیت سے ہی تو ہوگا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی سے اس کا فیصلہ ہوگا تو 4 لڑائی تو ہم کر چکے ہیں، 4 لڑائیوں میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اب 5ویں لڑائی کر لیجئے، اٹامک بم ہے ان کے پاس بھی ان کے پاس بھی، تو اٹامک بم سے تو ہم ہی مر جائیں گے، ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم دلی گئے تھے تو وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ دلی کی دوری اور دل کی دوری کو وہ دور کریں گے۔ ابھی تک اس میں کوئی عمل نہیں ہوئی ہے، نہ دل کی دوری ہی کو کچھ کیا گیا ہے، نہ یہاں پہ کوئی امن آیا ہے۔ کب آئے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اگر ان کے عزائم صحیح ہیں تو پھر تو مشکل نہیں ہونا چاہیے، مگر ان کے عزائم اگر غلط ہیں، جس طرح ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، جو میں نہیں سمجھتا ہمارے لیے کچھ ہوگا، کیونکہ ہم تو پہلے ہی ایک مصیبت میں ہیں۔ یہ ایک اور مصیبت ہم پہ پھینک دیں گے، ہم اس کا بھی برداشت کر لیں گے۔ اس موقع پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مرکزی حکومت سے سوال کیا کہ کشمیر میں مزید سیکیورٹی کمپنیوں کو لانے کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے سری نگر میں میرج ہالز میں سیکیورٹی فورسز کو رکھنے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اس معاملے میں سری نگر کے میئر کو بھی بے خبر رکھا گیا ہے۔ NC صدر نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ جو فورس آئی ہے یہ پہلے بھی یہاں تھی، ان کو لے گئے تھے باہر، ہو سکتا ہے کچھ کمپنی زیادہ آ گئی ہوں گی، مگر میرا تو صرف یہ ہے کہ ان کی ضرورت کیا تھی۔ اور پھر یہاں جو میرج ہالز ہیں، شادیوں کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں ان کو رکھنا غلط ہے۔ اور مجھے اس بات سے بھی افسوس ہے کہ ہمارے جو چیئرمین ہیں اس کے میونسپیلٹی کے کشمیر کے متو صاحب، انہوں نے بھی اس کی نندا کی ہے اور کہا کہ یہ غلط ہے اور ان سے پوچھا نہیں گیا۔ میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگا کہ گورنمنٹ کو فوراً ان کو ان ہال سے نکال کے دوسری جگہ ان کو۔ CPIM کے سینئر لیڈر محمد یوسف تارگامی نے اپنے منفرد انداز میں مرکزی حکومت سے سوال کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ایسی کون سی رکاوٹیں حائل ہو رہی ہیں کہ پارلیمنٹ، بلدیاتی اور DDC انتخابات منعقد کرانے کے بعد بھی اسمبلی انتخابات میں وہ تاخیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حد بندی کمیشن کا ریاستی دورہ اور ان کی رپورٹ کو لے کر بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیا جا رہا ہے، جبکہ مرکزی قیادت نے دہلی کی میٹنگ کے علاوہ سری نگر میں بھی جمہوریت کی بحالی اور اس کی بقا کی بات کی۔ تارگامی آج کنڈ قاضی گنڈ میں پارٹی کی میٹنگ میں شرکت کرنے کے غرض سے پہنچے تھے۔ انہوں نے یہاں ورکروں سے بات چیت کی۔ زیارت حضرت نور شاہ ولی بغدادی کے آستانے پر تارگامی نے حاضری دی۔ شور تو ہیں کہ بھائی چناؤ کروائے، اسمبلی کا چناؤ کرنے سے اور ہماری اس بدنصیب جموں کشمیر لداخ کی تاریخی حیثیت رکھنے والی جو ایک ریجن ہے اس کو بے تاج کر دیا۔ وہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کرنے میں کس سے پوچھنا ہے؟ پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا، 15 اگست کو انہوں نے اعلان کیا، ہر وقت اعلان کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہوگا۔ کس نے روکا؟ کرتے کیوں نہیں؟ اور اگر باقی اداروں کے لیے چناؤ ہوئے، حالات ٹھیک ہیں، دنیا بھر میں یہ شور گل ہے، تو بلا اسمبلی چناؤ کرنے سے یہ سرکار ڈرتی؟ گزشتہ 15 روز سے سرگرم ملیٹنٹ کو ضلع شوپیاں میں زخمی حالت میں پایا گیا۔ لندورہ ہرمین علاقے میں ملیٹنٹ زخمی پایا گیا اور اسے علاج معالجے کے لیے ضلع اسپتال شوپیاں لایا گیا۔ یہاں سے اسے سری نگر کے SHMS اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمی ملیٹنٹ کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ساحل بشیر لون
ولد بشیر احمد لون ساکنہ ہروینڈ شوپیاں 15 روز قبل اپنے گھر سے لاپتہ ہو گیا تھا اور اس نے ملیٹنٹ صفوں میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ ادھر اسپتال ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ ملیٹنٹ کی گردن پر گولی لگنے کے نشانات ہیں اور اس کی حالت ابھی نازک ہے۔ اسے ضلع اسپتال شوپیاں سے سری نگر کے SMHS اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ضلع بارہمولہ میں آج شہید محمد مقبول شیروانی کو یاد کیا گیا۔ پولیس نے شیروانی کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے شیروانی ہال میں ایک تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ SSP بارہمولہ رئیس محمد، DC بارہمولہ چیئرمین میونسپل کونسل توصیف رینا کے علاوہ پولیس، فوج اور سول سوسائٹی کے ارکان اس موقع پر موجود تھے۔ جدوجہد آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شیروانی کو مقررین نے اس موقع پر ایک بہادر دل قرار دیا۔ یاد رہے کہ شیروانی نے پاکستانی حملہ آوروں کی پیش قدمی کو ناکام بنا دیا تھا، جس کے نتیجے میں ہندوستانی فوج کو سری نگر میں اترنے کا کافی وقت مل گیا تھا۔ پولیس اہلکاروں، فوجی افسروں اور دیگر لوگوں نے شیروانی کی یادگار پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ SSP بارہمولہ نے اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبول شیروانی جیسے آزادی پسندوں کی قربانیوں کو بہت اہمیت ہے۔ 19 سال کے محمد مقبول شیروانی نے حب الوطنی اور غیر معمولی بہادری کی ایک داستان رقم کی ہے۔ انہوں نے اکیلے ہی ہزاروں حملہ آوروں کی پیش قدمی کو ناکام بنایا تھا اور ہندوستانی فوج کو سری نگر میں اترنے کے لیے قیمتی وقت دیا تھا۔ پاکستانی فوجیوں نے 22 اکتوبر کو بارہمولہ پر حملہ بول دیا تھا اور وہ سری نگر کی طرف بڑھنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ شیروانی نے اپنی سائیکل پر گھومتے پھرتے ہوئے دشمن کو گمراہ کیا، حملہ آوروں کو یہ باور کرایا کہ انہیں اپنی پیش قدمی روک دینی چاہیے اور مضبوط دیوار بن کر ٹھہر جانا چاہیے، کیونکہ ہندوستانی فوج بارہمولہ کے مضافات میں پہنچ چکی ہے۔ شیروانی کی اس دلیری کے سبب فوج کو شالاٹینگ کی جنگ کی تیاری کے لیے قیمتی وقت ملا تھا، لیکن دشمن کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہندوستانی فوج بارہمولہ کے قریب کہیں نہیں پہنچی ہے تو اس نے شیروانی کو گولی مار دی تھی۔ مقبول شیروانی کی یاد میں GMC بارہمولہ میں خون کے عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ JK پیپلز جسٹس فرنٹ نے ایک کیمپ کا اہتمام کیا۔ 1947 میں پاکستانی دراندازوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شیروانی کو یہاں خراج پیش کیا گیا۔ ضلع کے مختلف مقامات سے آئے کئی رضاکاروں نے یہاں پر اپنے خون کا عطیہ پیش کیا تاکہ وہ خون غریب اور نادار مریضوں کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ JK پیپلز جسٹس فرنٹ کے چیئرمین آغا سید عباس رضوی نے کہا کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جدوجہد آزادی کی قیمت ادا کرنے والے مقبول شیروانی جیسے آزادی پسند ہیروز کو یاد رکھنا چاہیے۔ 47 میں کہ اگر اس جموں کشمیر کی ایک ساکھ اور اس کی عزت بچانے والا وہی تھا تو اس وقت انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو اسی کی جان کی وجہ سے، نذرانے پیش کرنے کی وجہ سے کہ آج ہم محفوظ ہیں۔ تو ہم اس وقت نہیں تھے، بہرحال آج اس تاریخ کو زندہ کرنے کے لیے اور ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آج ہم نے یہاں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا ہے۔ 1947 اور 48 میں شالاٹینگ سری نگر میں ہوئی جنگ کے سلسلے میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ پاکستانی قبائلیوں کے ساتھ ہوئی جنگ کی یاد میں فوج کی جانب سے آج شریف آباد ہیڈ کوارٹر میں تقریب جاری ہے۔ اس فیصلہ کن دن رونما ہوئے واقعات یاد کیے جا رہے ہیں۔ 1947 اور 48 میں ہندوستانی فوج نے شالاٹینگ کی جنگ میں سری نگر کو پاکستانی قبائلیوں کے قبضے سے بچا لیا گیا تھا۔ شالاٹینگ جنگ کی تاریخی دن تک پہنچانے کے لیے آج یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس تقریب میں فوج کی 15ویں کور کے جنرل کمانڈنگ افسر DP پانڈے اور دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود ہیں۔ مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ مقامی لوگ بھی کافی تعداد میں اس تقریب میں شامل ہیں۔ تقریب میں شالاٹینگ جنگ کے مختلف واقعات اور کرداروں کی نمائش کی گئی۔ اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ آنے والی نسل تک یہ واضح پیغام جائے کہ آخر 1947 میں پاکستانی قبائلیوں نے کیا تھا اور کس طرح سے ہندوستانی فوج نے بہادری سے انہیں ناکام کر دیا تھا۔ برٹش راج کے سمے سے آزاد چلی آ رہی کچھ صرف آپ کا ہی ہوگا۔ کیسے؟ اللہ 1000 کا لشکر ہٹ رہے ہیں ہم پاکستانیوں کا جموں کشمیر پر۔ اس پروگرام میں بہت زیادہ اہمیت ہے سر، جیسے کہ مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کب ہوا تھا یہ جنگ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا
सर ये जंग कब हुआ था सर? जैसे मैंने सुना कि जब ऐसे हुआ था सर, इस टाइम हुआ था सर, तब मुझे प्राउड फील हुआ है सर. मैंने सुना है कि 12 घंटों में 500 किलिंग्स किए गए हैं, तब मुझे ये फील हुआ कि इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट आर्मी सर. यूथ के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मिलिटेंसी छोड़ दो, ड्रग छोड़ दो. हमारे मैं एक कैडेट हूँ एनसीसी का, तुम भी आ जाओ इसमें, आप भी आ जाओ, सभी आ जाओ यहाँ पे और ज्वाइन करो. बेरवा के मखावा के लोगों ने नाला सुकनाक से बजरी और बोल्डर निकालने के मामले पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया. मखावा के लोगों ने नाला सुकनाक पर एहतजाजी मुजाहरा किया. लोगों का कहना है कि नाला सुकनाक से बजरी निकालने से उनकी अराजी दरिया बर्बाद हो रही है और आसपास के छोटी नदियां भी खुश्क हो गई हैं. उनका कहना है कि रिहायशी मकानात को भी खतरा लाहक हो गया है. उनका मजीद कहना है कि नाला सुकनाक की खुदाई की वजह से रिहायशी घरों में नस्ब किए गए ट्यूबवेलों से भी पानी नहीं निकल रहा है. एहतजाजियों ने सरकार से अपील की कि नाला सुख से बाजरी और बोल्डर निकालने का काम रोका जाए. इस पुल का जो वो अमेंडमेंट है वो ठोठुआ है, वो आज तकरीबन 7 फुट जो अंडरग्राउंड था वो भी अब बाहर आ चुका है. अगर ये पुल भी अब खराब हो गया तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे. हमारी डिमांड है जो हमारा ये नाला है, इस नाला में खुदाई बंद की जाए, इन डोजरों को रोका जाए जो यहाँ आते हैं तकरीबन 3 मशीनें लेकर और इसको बहुत गहरा बनाते हैं, जिससे हमारी आबादी को भी नुकसान है और हमारे खेतों को भी, और हमारा पानी जो पीने का पानी, हमारे जो टैंकों में भी पानी आता था वो भी अब नहीं आता. प्लाट गो ब्यूट योर तकरीबन खर 4 हथ आब से सैराब गम ब्रो कन यह कर दान कह बन बिचार खुशक तह लूट मार. यह नाल सजरावान, सोन ज़रात गो गैर आबाद, सन त्रेश अस गई त्रेश कामन, आब बनान, अम ददार. कश्मीर में अब डेंगू की जांच के लिए इंतजामात किए गए हैं. डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने आज श्रीनगर में कायम एक जांच मरकज का इफ्तिताह किया. डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक राथर इस सिलसिले में JLNM अस्पताल में थे. डॉक्टर मुश्ताक के मुताबिक यहाँ 26 केस पाए गए हैं, लेकिन तमाम 26 मरीजों को इन्फेक्शन कश्मीर से बाहर लगा. उन्होंने बताया कि कश्मीर में किसी को इन्फेक्शन लगने का कोई भी मामला अभी तक सामने नहीं आया. अभी तक जो 26 केसेस आए उनमें ट्रैवल हिस्ट्री है, यहाँ का कोई इंडिजियस केस है नहीं, जो भी है तो इम्पोर्टेड केसेस है. लेकिन फिर भी हमने ट्रीटमेंट तो हमने ऑलरेडी हर एक जगह स्टार्ट किया था. अब हमने टेस्टिंग फैसिलिटीज भी आज स्टार्ट करी JLNM में, और जो भी ये केसेस है उनके लिए एक टास्क फोर्स हमने बनाया है जो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी है और डिविजनल लेवल पे भी है. इसको हम पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं. अभी तक तो सिर्फ ट्रैवलर्स ही आए हैं और टेस्टिंग फैसिलिटी आज हमने स्टार्ट भी कर. मारूफ ब्रॉडकास्टर और अदीब सतीश विमल की 3 किताबों की आज रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई. असल में ये किताबें उनकी हिंदी नज़मों का मजमुआ खोए हुए पुरुष किताब का अंग्रेजी और कश्मीरी तर्जुमा है. कश्मीरी में इस किताब का तर्जुमा डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने किया है और अंग्रेजी तर्जुमा मुश्ताक बर्क ने किया है. रस्म रुनुमाई के मौके पर कई समाजी और अदबी शख्सियात मौजूद रहीं और डॉक्टर सतीश विमल के काम को सराहा गया. इस तरह की नज़मों की रवायत यहाँ रही थी और कई 100 साल में इस रवायत से फिर इनहराफ हुआ, लिखा नहीं गया. मैंने कोशिश की कि हिंदी में इस तरह की एक रवायत को फिर से उजागर किया जाए, लेकिन बात इतनी ज़ोरदार हो गई कि मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं, इसको दूसरे लिसानी इलाकों तक पहुंचाने की ज़रूरत है. और उन्होंने जो तर्जमा किया है वो कमाल का है. ये आम आदमी तक जब सुनवाई इसकी होती है, जब वो सुनता है तो आदमी एक ऐसे इलाके में पहुंचता है जहां रूहानियत और वो आनंद और लुत्फ़ इंबिसात की गढ़ियाँ उसे फ़राहम हो जाती हैं. तर्जमा करना बड़ा कमाल होता है, क्योंकि तर्जमा बहरहाल तो तर्जमा ही होता है, लेकिन ये इन नज़मों का ही एजाज़ है, नज़मों का ही कमाल है कि हर ज़बान में जब आप इसको पढ़ेंगे, चाहे इंग्लिश में पढ़ेंगे जो मुश्ताक बर्क साहब ने किया इसका, चाहे ओरिजिनल पढ़ेंगे या मेरा किया हुआ कश्मीरी तर्जमा पढ़ेंगे, तो आप कतन ये नहीं मानेंगे कि ये तर्जमा है. I was very much thankful that Satish ji has given me a chance to translate his worthy work, and I did my best to translate them. Actually, translation is not an easy job. You need to understand the crux and the matrix of the entire nazm. And I hope and wish that this book shall reach to the other
quarters. And I congratulate Satish ji for writing such beautiful. बालीपुरा के परंग हाजन इलाके में आज हल्क़े अदब सोनाबारी की जानिब से सालाना इजलास मुनक़्क़िद किया गया। ये इजलास मरहूम अब्दुल खालिक भट्ट गयूर की याद में मुनक़्क़िद किया गया। इस तकरीब में उनके शेरी मजमूए की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। इस मजमूए को मरहूम मोहम्मद एहसन और मजीद मजाजी ने तरतीब दिया है। तकरीब की सदारत डॉक्टर रफ़ीक मसूदी ने की, जबकि ऐवान सदारत पर प्रोफेसर फारूक फयाज, प्रोफेसर शाद रमज़ान और अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट मौजूद रहे। अपने कलीदी खुतबे में शाकिर शफी ने ख़ानदान गयूर की काविशों का तस्करा करते हुए उनको मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अदीबों को ज़बान व अदब की तरक्की और तरवीज के लिए ज़ाती मफादात से बालातर होकर काम करना होगा। तकरीब में मजीद मजाजी को उनकी गरां क़द्र अदबी खिदमात के लिए ख़ानदान गयूर ने एजाज़ से नवाजा, जबकि उन तालिब इल्मों में इनामात भी तकसीम किए गए जिन्होंने हल्क़े अदब के ऑनलाइन मुकाबले में नुमाया मकाम हासिल किया। कुछ वजूहात बने इस किताब को इतनी ताख़ीर क्यों लगी। तकरीबन 50 साल के बाद ये उनकी किताब आज उनकी इजरा हुई है। हालात जो कश्मीर में बने थे, क्योंकि सियासी ख़ानदान था, ऐसे बहुत से हालात बने, बहुत से वजूहात बने जिनकी वजह से हम खामोश थे, लेकिन अल्लाह का करम है कि आज हम इस मुकाम इस वक्त तक पहुँचे कि आज हमने उनका कलाम जो है वो रिलीज़ किया। कि शायरी को क्या है कि शाया नहीं किया गया था और हल्के अदब के मजीद मजाजी ने उनकी किताब को तरतीब दिया जिसका नाम रखा है आला ददवनिक, और उसी किताब की आज यहाँ पर रस्म रोनुमाई हुई और अब्दुल खालिक भट्ट गयूर के फ़न और उसकी शख्सियत और उसके कलाम के मुतल्लिक़ यहाँ पर मुदल्लल मकाले भी पढ़े गए। हमारे जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कश्मीरी ज़ुबान और अदब के लिए, उनको रिडिस्कवर करने का, तो इसमें इन तंजीमों का अपना एक हिस्सा है और ये हम पे एक ज़िम्मेदारी है, अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है और तहज़ीबी ज़िम्मेदारी भी है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। टंगमर के काजीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ सहाफ़ी शाहिद मसूद बुखारी का इंतकाल हो गया है। सहाफ़ी बरादरी के साथ साथ सियासी व समाजी शख्सियात ने शाहिद बुखारी के इंतकाल पर रंज-ओ-गम का इजहार किया है। लोगों ने शाहिद बुखारी के इंतकाल को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान से ताबीर किया। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने भी शाहिद बुखारी के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। बज़्म अदब गुलमर्ग कश्मीर ने एक हंगामी ऑनलाइन इजलास में शाहिद बुखारी के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए उनकी सहाफ़ती खिदमात को याद किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने रफियाबाद के कंडी इलाके का दौरा किया। उन्होंने बरंदब में पार्टी कारकुनों के एक कन्वेंशन से खिताब किया। अब्दुल गनी वकील ने हुकूमत पर रफियाबाद इलाके को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने रफियाबाद में सड़कों की तजदीद व मरम्मत, तिब्बी सहूलियात की फराहमी और सयाहत को बढ़ावा देने का मुतालबा किया। उन्होंने लोगों को उन ताकतों से खबरदार रहने की तलकीन की जो सिर्फ इख्तिदार के हुसूल के लिए गुमराह कुन नारे दे रही हैं। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट और मिशन यूथ के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने आज पुंछ का दौरा किया। कबाइलियों के लिए सब प्लान का जायजा लेने के लिए उन्होंने जिला इंतजामिया के ओहदेदारों के हमरा मीटिंग की। इस दौरान बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और मिशन यूथ के तहत किए जा रहे मुख्तलिफ इक़दामात का भी जायजा लिया गया। डाक बंगला पुंछ के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये मीटिंग मुनक्किद हुई। शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि हुकूमत ने ट्राइबल सब प्लान और मिशन यूथ के तहत तरक्याती कामों के लिए करोड़ों रुपए जारी किए हैं। मीटिंग थी रिव्यू करने के लिए कि डिस्ट्रिक्ट का जो बजट है, जो प्लानिंग है, वो किस लेवल पे है। काफ़ी सेक्टर्स में अच्छा काम भी हो रहा है, डीसी साहब बड़ी मेहनत से कर रहे हैं, और कुछ सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट की जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो डिस्कस किया गया है। इसके अलावा ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा फंडिंग यहाँ पे दी गई है। लगभग 35 करोड़ के नए काम जो है उनके लिए फंडिंग इस साल रिलीज़ की है। नया मॉडल स्कूल, एक रेजिडेंशियल स्कूल पुंछ के लिए डिस्कस किया गया है यहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए। उसके अलावा अराउंड 15 करोड़ इस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए पैसा यहाँ दिया गया है। डिफरेंट स्कूल्स के लिए, डिफरेंट जो स्मार्ट स्कूल्स हैं उनके लिए, मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए 6 क्लस्टर ट्राइबल मॉडल विलेज हैं, लगभग 4.5 करोड़ स्कॉलरशिप की स्कीम है। इसी तरह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं, BADP के प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी हैं। कुछ जो नई डिमांड्स थी उनको भी सैंक्शन करने का डिस्कस किया गया। और ग्लोबल सिविल सोसाइटी ने विश्व कश्मीरी समाज के ताउन से जम्मू के नगरोटा में मजहबी रसूम अंजाम दी। यहाँ पूरे रिवायती जोश व जज्बे के साथ सामूहिक यज्ञोपवीत का एहतमाम किया गया।
जम्मू के तमाम माइग्रेंट कैंपों से आए कश्मीरी पंडित बरादरी के बच्चे इन रसूम में शामिल रहे। उन्हें इस दौरान मुकद्दस धागा पेश किया गया। इस महायज्ञ का आगाज 6 नवंबर को हुआ था। आज शाम वेदों के जाप और दीगर रसूमात के बाद ये यज्ञ इख्तिताम पजीर हुआ। इस तरह के मजहबी रसूम की अंजामदही के मौके पर बीजेपी लीडरान भी शरीक थे। सिविल सोसाइटी और दीगर मजहबी तंजीमों से जुड़े लोग इस तकरीब में शरीक रहे। तकरीब में शिरकत करने वाले लीडरान में देवेंद्र राणा, चंद्रमोहन गुप्ता, किरण वातल और M.K. योगी शामिल थे। तमाम मोअज़्ज़िज़ शुरका ने गुरुकुल परंपरा यज्ञोपवीत के अहिया के लिए मुंतज़मीन की काविशों की खूब सताइश की। खाली हमारे कैंप के ही लोग नहीं है, चाहे जगती कैंप हो, चाहे मुठी कैंप हो, चाहे TRT नगरोटा के हो, ये नॉन कैंप के, यहाँ तक कि उधमपुर से हमारे पास बच्चे आए हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी समाज की तरफ से, अपने एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरफ से इन बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ, ये फले फूले, तरक्की करे, ये अच्छे इंसान बने और हमारे देश का, अपने जम्मू कश्मीर का, अपने समाज का वो नाम रोशन करे। जो हमारी परंपराएं हैं, हमारा जो सनातन है, हमारी जो कल्चर है, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारा जो कश्मीरी समाज है, इन्होंने अपनी माइग्रेशन होने के बाद भी, दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी अपना जो सनातन है, संस्कृति है, कल्चर है, उसको नहीं छोड़ा है। और वो आगे छोटे बच्चों, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनको ये बताया है। कोई भी बच्चा अगर US से बाहर फॉरेन इंग्लैंड में रहता है, लेकिन उसको अपने सनातन से, अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से ये समाज जोड़ के रखता है। कश्मीरियत को ज़िंदा रखने में और उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने में विस्थापित होने के बावजूद कश्मीरी पंडितों का एक मुख्य रोल है। और आज भी कश्मीर का चिन्ह बन के कश्मीरी पंडित जो हैं वो पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में कश्मीर का नाम कर रहे हैं। मैं कश्मीरी पंडित समाज को, ग्लोबल सोलैस को और कश्मीर हिंदू समाज को आज मुबारकबाद पेश करता हूँ। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कठुआ के नगरी पुलिस पोस्ट के हुदूद में पंजाब के एक जोड़े को पुलिस ने हिरासत में लिया। एक दुकानदार को मुबैना हिरासा करने और पुलिस मुंशी को 10,000 रुपए देने के लिए मजबूर करने पर उन्हें हिरासत में लिया गया। DSP हेडक्वार्टर शमीक कुमार के मुताबिक दुकानदार मंगलदास ने अपने रिश्तेदार के लापता होने की शिकायत नगरी पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले पर खुद को गुरदासपुर की एंटी क्राइम इंटेलिजेंस संगठन का जाहिर करने वाले जितेंद्र कुमार और उसकी अहलिया मंगलदास पर दबाव डाल रहे थे कि नगरी पुलिस पोस्ट के मुंशी को 10,000 रुपए दिए जाएं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जांच जारी है। इसमें हमने एक लड़की और एक लड़के को, जो दोनों हस्बैंड वाइफ है, उनको हिरासत में लिया है। जिसका लड़की का नाम अंजलि कुमारी, वाइफ ऑफ जितेंद्र पाल, RO गुरदासपुर नंगल के रहने वाले हैं, और उसके हस्बैंड का नाम जितेंद्र पाल, सन ऑफ ओमनाथ, गुरदासपुर नंगल में रहने वाले हैं। तो इनको हमने पुलिस स्टेशन कठुआ में लाया है और पूछताछ जारी है इनसे। क्या जी अपने आप को एंटी क्राइम इंटेलिजेंस संगठन गुरदासपुर के बता रहे हैं, तो हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। कुछ होगा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। ये बोलने लगे हाँ तो सारा फोन क्यों नहीं चुकन दिया, ये पता नहीं CBI जिला फोन कर देना तो ये पता फोन चुकने के बाद मिस नहीं करना फोन। इन्हें कार्रवाई पुलिस ने कख नहीं करनी है। उनके कोल जा, मुंशी कोल जा, मुंशी 10,000 रुपये दे, ना नहीं लिया सर उन्हें नगरी चौकी। हाँ जी, मुंशी साहब ने 10,000 रुपये दे ते भला तू उत्थै पुज्जने इ'यां आखदे भला सानू ठाणे उत्थै मुंशी कोला SSB कोला मिली आए भला SSB साहब ने बंदे भेजे। लालपुरा कहलल तराल में हुकूमत ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए एक नई इमारत पर काम शुरू किया था, ताहम अभी तक भी उसे पूरा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से एक बड़ी आबादी वाले इलाके को तिब्बी सहूलियात के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। मकामी लोगों का कहना है कि तिब्बी मरकज अभी पुरानी इमारत में ही काम कर रहा है, लेकिन वहां जगह की कमी की वजह से परेशानियां दरपेश आती रहती हैं। इस जानिब तवज्जो मरकूज करने की लोगों ने मुतल्लका हुक्काम से अपील की है। पूरा गांव जो है सिर्फ कहलील ही नहीं है, लालपुरा कहलील नहीं है, यहाँ से बहुत सारे गांव पड़ते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ 2 कमरे सिर्फ अवेलेबल है जहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं और डिस्पेंसरी भी यहाँ पे ही है। तो 2 कमरों में आप खुद ही सोच सकते हैं कि 2 कमरों में कैसे इलाज हो सकता है एक पेशेंट का, और अगर किसी को एडमिट करना पड़े रात के लिए तो ऐसे कोई भी अवेलेबिलिटी यहाँ पे मालूम हमें नहीं है। आज 7-8 वरी अच्छे कुन किस्म का लाग थी लागे। अलबत्त वो अपील कि गवर्नर साहबस गोस जल्दी पहमत गसन। अगर एक्सरे मामूली एक्सरे या कह टेस्ट पे त्राल वसन काम करना है, कुछ शीशे लगवाने अंदर में थोड़ा सा फर्निश किए, बाकी सब कुछ तैयार है।
स्टाफ स्ट्रगल की जैसे जहाँ तक बात है तो काफ़ी सारा स्टाफ यहाँ पर, लेकिन वो भी डाइवर्ट हुआ है। जैसे यहाँ पर हमको लैब टेक्नीशियन है, लैब ही नहीं है तो टेक्नीशियन क्या करेगा, उसको दूसरी जगह पर डाइवर्ट किया है। क्लर्क्स हैं, ड्राइवर है, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के लिए गैरेज यहाँ नहीं है, इसलिए एम्बुलेंस को त्राल में रखा है। ऑब्वियसली ड्राइवर भी वहीं पर है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है। अभी पर जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें सिर्फ 2 या 3 कमरे हैं, उसमें स्टोर है, बेड 1-2 रखे हैं और ओपीडी रूम है, और एक कमरा बनाया रिसेंटली हमने, उसमें इम्यूनाइजेशन करते हैं बच्चों को। बाकी टोटल अकोमोडेशन की कमी है। अगर अकोमोडेशन की प्रॉब्लम हल हो जाए तो सब कुछ मसला हल हो जाएगा, स्टॉप भी वापस आ जाएगा। शुमाली कश्मीर के पटन में मौजूद 2 तारीखी चश्मे जो मुसलमान नाग और सुखनाग के नाम से मशहूर है, ये दोनों चश्मे खस्ता हो चुके हैं। उनकी शान रफ्ता को बहाल करने के लिए सरकार और मुतल्लिका महकमा ख्वाब गफलत में है। पटन में ये दोनों चश्मे मजहबी हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल रहे हैं। वाजरे के सुखनाग में लॉर्ड शिवा का मुजस्समा आज भी मौजूद है और मुसलमान नाग के मुत्तसिल ईदगाह मौजूद है। इसके बावजूद इन दोनों चश्मों में काफ़ी आलूदगी पाई जा रही है। मकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं इन दोनों चश्मों की शान रफ्ता और तारीखी वर्से को बहाल किया जाए और इन दोनों चश्मों का पानी पीने के लिए कारगर बनाया जाए। अनडिवाइडेड कश्मीर में लोग वहाँ पर आते थे, पूजा करते थे, नहाते थे, धोते थे, और मुसलमान लोग भी जो आपने देखा पास ही कब्रिस्तान था, वहाँ पर फातिहा पढ़ते थे, ईदगाह में वो नमाज़ें पढ़ते थे। मगर क्या करें कि इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई आज तक। आपने भी ये 12 ये मसला उठाया, कई साल कबल ये नोटिफाई भी हुआ है और स्टेट आर्काइव्स डिपार्टमेंट की तहवील में चला गया है, ग्रांट्स भी है इसमें। तो आर्काइव्स वाले कहते हैं रोज़ कि हम इसको देखेंगे, इसकी जो शान रफ्ता है वो बहाल करेंगे। तक इन चश्मों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। जो स्टेट आर्काइव्स एंड आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसके तहवील में ये है और बहुत सारे ग्रांट्स भी है, वो इसको टेकअप करें और इसको ठीक करें। चश्मे 2 थे जो सिख नाग और मुस्लिम नाग से जाने जाते थे, तो इनकी हालात बहुत ख़राब है। गवर्नमेंट की आदम तवज्जो की वजह से ये दोनों नाग जो है ये बहुत काउसा नाराबल के शेख मोहल्ला के लोगों ने पीने के पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर मुतल्लिका महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। शेख मोहल्ला के लोगों का कहना है कि यह इलाका गुज़श्ता 25 बरसों से पीने के पानी से महरूम है। लोगों को कई किलोमीटर की मसाफत तय करके पानी लाना पड़ता है। लोगों ने बताया कि उन्होंने सरकार की नोटिस में यह मसला लाया लेकिन कोई काम नहीं हुआ। काउसा के लोगों ने सरकार और मुतल्लिका महकमे से अपील की कि यहाँ पीने का पानी फराहम किया जाए। 20 साल से यहाँ कुछ पानी वानी का सिस्टम लाइन बिछा है मगर पानी नहीं आता है, और हमें मजबूरन नाले सकनाग पर जाना पड़ता है, वही नाले सकनाग का पानी पीना पड़ता है, और उससे हमारे बच्चे भी और हम भी बीमार। यहाँ कोई पाइपलाइन भी नहीं है कि अगर आप खुद देखेंगे किसी के घर में या रास्ते में कोई पब्लिक पोस्ट होता है, कोई नहीं है। यहाँ कोई पाइपलाइन ही नहीं है। हमारे बच्चों को, हमारे माओं को, हमारे बहनों को, सबों को जाना पड़ता है, मुंह धोने के लिए भी जाना पड़ता है दरिया में, क्योंकि हमें पानी लाना पड़ता है दरिया से। मेहरबानी करके हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके यहाँ का ये मसला जो है पूरी तौर पर हल। यहाँ पे संप है सर, वो पिछले 5 सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी भी गवर्नमेंट सर उसके लिए कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा रही है। अगर वो हल हो सकता है तो शायद हमारे इस मोहल्ले में पानी की, पूरे काउसा एरिया में शायद पानी की प्रॉब्लम। कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में गुज्जर बकरवाल तबके के लोग रिवायती तलवारबाजी को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। गुज्जर बकरवाल मुख्तलिफ प्रोग्रामों और शादी ब्याह की तकारीब पर तलवारबाजी करते हैं। ये लोग इस खेल में तलवारों के बजाय अब छड़ियों का भी इस्तेमाल करते हैं। काफी तादाद में गुज्जर बकरवाल के अलावा दीगर लोग भी इस रिवायती खेल से खूब लुत्फ लेते हैं। इन लोगों का कहना है कि इस रिवायती खेल को भी दूसरे खेल मुकाबलों की फहरिस्त में शामिल किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसकी जानिब राग़िब हो सकें। कहते हैं ये हमारी खेल है, हम शादियों में भी खेलते हैं, ये जहाँ पर कोई प्रोग्राम होता है वहाँ पर खेलते हैं। हम बचपन से ही खेलते आए, हमारे बच्चे भी खेलते हैं, हम भी खेलते हैं। जैसे इसको कश्मीरी में शमशेर बोलते हैं। ये पहले पुराने ज़माने से लेकर आज तक हम ये खेलते आए, बहुत अच्छा खेल है। हम डिमांड करते हैं सर, जैसे क्रिकेट मशहूर है, वॉलीबॉल है और खेलें मशहूर हैं, उनका आगे सिटियों में खेलते हैं, ऐसे यहाँ इसका भी कहीं पर गेम बनाया जाए खेलने के लिए। इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, एक दूसरे को कोशिश करते हैं काटने की, लेकिन वो काटने नहीं देते अपने आप को। ये भी एक खेल है। जिला किश्तवाड़ के
नवाफाजी मड़वा इलाके में राजमा की पैकेजिंग और मार्केटिंग शुरू की गई है। इस दूर उफ्तादा इलाके में लोगों को खुद कफील बनाने की गर्ज से फौज ने ये कदम उठाए हैं। फौज ने यहां जिले इंतजामिया के ताउन से ये ट्रेनिंग कैंप लगाया था। इस दौरान मकामी नौजवानों को राजमा की प्रोसेसिंग और उसकी मार्केटिंग के उमूर से आगाह किया गया। यहां 10 नौजवानों पर मुश्तमिल एक सेल्फ हेल्प ग्रुप तश्कील देकर उन्हें राजमा की काश्त के तरीक़ेकार के हवाले से जानकारी फराहम की गई। तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज एक बार फिर यहाँ इस इलाके के लिए एक अच्छा स्टेप उठाया है। सद्भावना के तहत भारतीय सेना ने जो मशीनें फराहम की यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को, जिसमें राजमा पैकिंग वाली जो मशीनें होती है फराहम की, तो इसमें हम तहे दिल से भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हमें उम्मीद है आगे भी इस तरह के काम इस इलाके में फौज के द्वारा आयोजित कराए जाएंगे। लड़कों को ट्रेनिंग मिली है, कुछ लड़कों ने सीखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी जो सारे नौजवान हैं वो भी आए, वो भी सीख जाए ताकि उनको रोज़गार मिले। और मैं फिर से एक बार इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने सद्भावना के तहत बहुत सारे काम किए हैं यहाँ हमारे मड़वा में। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हर वक्त इस इलाका मड़वा की तामीर तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। कहीं भी हमें आफत आती है तो हम इंडियन आर्मी की वही वहाँ पे मौजूद होती है। इंडियन आर्मी ने सद्भावना के तहत यहाँ पे कई काम किए हैं। मसलन हमारा जो यहाँ पे पुल था कदरना और नौपची के दरमियान जो ने बहुत बड़ा पुल दिया है। जिला कठुआ के गोविंदसर में डेंगू के बढ़ते मामलात को देखते हुए महकमे सेहत की टीम ने इलाके का दौरा किया। गांव गोविंदसर के इस दौरे में सीएमओ कठुआ शामिल थे। मरकजी हुकूमत की तरफ से भेजी गई टीम के हमरा उन्होंने इलाके में पहुंचकर डेंगू के केसों की जांच के हवाले से सैंपल इकट्ठा किए। इस टीम ने गांव वालों में हिफ्जान सेहत और सेहतमंद माहौल बनाने के ताल्लुक से बेदारी पैदा की। वहीं गांव वालों ने डेंगू केसों के तई इंतजामिया के नारवा रवैये का मसला उठाया और सरकारी इंतजामिया के गैर संजीदा तर्ज अमल पर नाराजगी जाहिर की। हेल्थ डिपार्टमेंट की दिल्ली से टीम थी तो कठुआ की टीम भी साथ में थी, लेकिन जो चीज़ उन्होंने बताई है उस पे अमल करना गांव वालों का फर्ज है। जांच वगैरह की उन्होंने, बहुत सैंपल लेकर भी गए हैं डेंगू का। वो पाइप में डालकर डेंगू के जो 2-4 पीस थे वो लेकर गए हैं। डायग्नोज होता है 5 दिन के बाद, तो उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होगा, तो किसी बंदे की जान भी जा सकती है। इसलिए उसकी रिपोर्ट दूसरे दिन आए, जिसके बाद इमीडिएटली जो लोगों के अंदर भय है, जो डर है लोगों के, क्योंकि डेथें भी हुई है, लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा एक डर बैठा हुआ है, उस डर को मतलब निकाला जाए, लोगों को मतलब। पुंछ के मंडी तहसील में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ मुहिम चलाई गई। तहसीलदार मंडी की निगरानी में मुहिम चलाई गई। गैर कानूनी कानकनी के लिए बनाए गए रैंप और रास्तों को जेसीबी के जरिए तबाह किया गया। तहसीलदार ने कहा कि गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ताजपुर से जो इलीगल रैम्प्स और पाथ्स डेवलप किए थे जो इलीगल माइनिंग के लिए यूज होते थे, वालियों और आजमाबाद में वो कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरह ये कार्रवाई चकतरो, केनू, कलानी और साथरा में भी आने वाले वक्त में की जाएगी और सैकलू में भी। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग माइनिंग करना चाहते हैं वो लीगल वे से अप्लाई करें और उनको ऑथराइज्ड किया जाएगा, चाहे शॉर्ट टर्म परमिट हो चाहे दूसरे तरीके हो। आप माइनिंग डिपार्टमेंट के पास अप्लाई करें और आपकी जो ऑथराइजेशन होती है उस ऑथराइजेशन की बिना ही पे आप माइनिंग कर सकते हैं। और इलीगल माइनिंग, किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटी को विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ तहसील मंडी अलो नहीं किया। द्रास में तीरंदाजी टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। फॉरएवर इन ऑपरेशंस के उन्वान से ये मुकाबले मुनक्किद किए गए। पोलो ग्राउंड भीमबत में फौज ने टूर्नामेंट का एहतमाम किया था। इख्तितामी तकरीब में द्रास ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर मेहमान खुसूसी थे। फौज, सिविल इंतजामिया के अफसरान के साथ साथ देही इलाकों के सरपंच और साबिक फौजी इस तकरीब में शरीक थे। सभी ने फाइनल मैच देखा। फाइनल मैच में एमबी रॉयल ने गोशन टीम को हराकर चैंपियनशिप जीत ली। इस टूर्नामेंट में द्रास के मुख्तलिफ देहातों की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। खेल शायकीन ने नौजवानों की सलाहियतों को निखारने के लिए बार बार इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद कराने पर फौज की सताइश की। राजौरी में फौज की जानिब से मैराथन का इनेकाद किया गया। जम्मू, नौशहरा, अखनूर और पुंछ समेत मुख्तलिफ इलाकों के 1200 से ज्यादा अफराद ने इस मैराथन में शिरकत की। जीओसी 25 डिवीजन ने
ALG राजौरी में मैराथन को झंडी दिखाई। इस दौरान कल्चरल प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। शुरका को इनामात से भी नवाजा गया। अंदर हिस्सा लिया। इसका मुद्दा ये था कि सबसे पहले जो आजकल नारा चल रहा है फिट है इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, उसको बढ़ावा देने के लिए। दूसरा, राजौरी मैराथन को एक नेशनल पोर्टल के ऊपर लाने के लिए, ताकि पूरी देश में ही और दुनिया के अंदर ये संदेश जाए कि राजौरी के अंदर ऐसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज हो सकती है और हो रही है। शाहीन स्पोर्ट्स क्लब त्राल की जानिब से आज बटागुंड से त्राल तक एक दौड़ का एहतमाम किया गया था, जिसमें कई बच्चों ने हिस्सा लिया। दौड़ का इफ्तिताह सिटीजन काउंसिल के चेयरमैन फारूक अहमद त्राली ने झंडी दिखाई। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों को असनाद व इनामात से नवाजा गया। पार्टिसिपेट किया तो बहुत अच्छी बात है कि पहली बार ऐसा त्राल में हमने ये जो इनिशिएटिव लिया और हम इसमें कामयाब हो गए। मुस्तकबिल में इंशाल्लाह बड़े मैराथन होंगे, 12 किलोमीटर के होंगे, 42 किलोमीटर के होंगे। और इसमें बच्चों के लिए यही मैसेज है कि वो यहाँ पे अभी ड्रग का ज़्यादातर मसला चल रहा है, वो ड्रग को अवॉइड करें और एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। दरबार मूव फिर से जुज़वी तौर पर बहाल किया गया। इस पर पहले काफी हंगामा हुआ था। लगता है सरकार दबाव में आ गई है। कोविड के मामले में लोग लापरवाही से काम ले रहे हैं। लॉकडाउन के इम्कानात बढ़ गए हैं। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। नाजरीन, लड़ीशाह इन मामलों पर अपने खास अंदाज में तबसरा कर रहे हैं। आप देखें लड़ीशाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। दरबार मुँह को रुख बे रेस्टोर, दरबार मुँह को रुख बे रेस्टोर। Apariapor Wasawath Petshore, Apariapor Wasawath Petshore. Darbar muko rukbe restore. Under pressure zanay sarkar. Under pressure zanay sarkar. दुकानदार तू जाओ हाहाकार, दुकानदार तू जाओ हाहाकार. Jemiken lukan hun chalo bezor, Jemiken lukan hun chalo bezor. Darbar muko rukbe restore. Apariapor Wasawath Petshore. Yo hoy osröpt Jemiken Koshiran. Yo hoy osröpt Jemiken Koshiran. Hakim mauhet sawarta bunbyan. Hakim mauhet sawarta bunbyan. Timan os kabar kastam petor. Timan os kabar kastam petor. Darbar muko rukbe restore. Apariapor Wasawath Petshore. Lockdown hutun yunu wapas. Lockdown hutun yunu wapas. Maske urustui luksarimas. Maske urustui luksarimas. Ehtiyat yuskarantas vananchor. Ehtiyat yuskarantas vananchor. Darbar muko rukbe restore. Apariapor Wasawath Petshore. Diesel petrol dam gai kam. Diesel petrol dam gai kam.
Ödegay korset den godam. Ödegay korset den godam. Gadevlaj beykarin dordor. Gadevlaj beykarin dordor. Darbar mu koruk beyir restor. Darbar mu koruk beyir restor. Aparia por vatsava tu peshor. Aparia por vatsava tu peshor. Darbar mu koruk beyir restor.